सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, कम्युनिकेशन टुडे की आज की वेबिनार श्रृंखला जो राजस्थान विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है और इसी विश्वविद्यालय में लंबे समय तक राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर रहे प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी की स्मृति में ये आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और आयोजन की शुरुआत में सबसे पहले इस कम्युनिकेशन टुडे वेबिनार श्रृंखला की आयोजन सचिव और मेरठ में शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज अंग्रेजी विभाग की व्याख्याता कवयित्री लेखिका डॉक्टर उषा साहनी से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के इस आयोजन की शुरुआत करें। डॉक्टर उषा साहनी। आभार सर। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे जो मित्र यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, उनमें जिन मित्रों के माइक ऑन है उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना माइक ऑफ कर लें, क्योंकि बीच बीच में व्यवधान और दूसरी आवाजें बहुत आ रही हैं। कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो व्यक्ति बोल रहे हैं अब उन्हीं का माइक ऑन रहेगा, बाकी सबके माइक ऑफ रखेंगे तो कार्यक्रम सहज रूप से संचालित हो सकेगा। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, कम्युनिकेशन टुडे और लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया जा रहा है। कम्युनिकेशन टुडे जयपुर से प्रकाशित एक मीडिया त्रैमासिक है जिसकी अपनी एक लंबी यात्रा रही है। कम्युनिकेशन टुडे की डिप्टी एडिटर के रूप में भी डॉक्टर साहनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे इस मीडिया जर्नल की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करें। डॉक्टर उषा साहनी। थैंक यू सर। We are extremely fortunate that we are on this webinar platform since 2nd of October. And while welcoming all the guests and the chief speaker of today's webinar, Professor K.G. Suresh, who is the Vice Chancellor of Makhanlal Chaturvedi University. And the positive aspect here for which I would like to throw some more light is that he has been the star speaker of our webinar series, because whenever we requested him to be with us, he always had given that chance to us, and he has come along with his insights and beautiful ideas so that we all, the listeners and the professionals or even the research scholars, everybody was benefited by his words. So first of all, I would like to welcome Professor K.G. Suresh once again for this webinar again, which is going to be held upon a very important topic, which Professor Jayant will be talking about. I would welcome Meenakshi Madam. Her presence is going to be really valuable for us, because the memories that we are going to share, they are actually directly related to ma'am. So we are very really fortunate that ma'am is here to with her kind presence and will be here with us for the entire webinar. Professor Jayant, we have already been with him for earlier webinar, which was a beautiful experience being with him. Today, the webinar which we are organizing, we have done the entire thing with lifelong learning department, where Professor Jayant is the director of it. So we welcome, whereas he is the host as well, but still I would like to welcome you, sir. And the entire participants list, we have number of eminent professors as well in the list. So I welcome each and every person on behalf of Communication Today, the communication journal, the media quarterly journal, wherein we have
given the platform to all the youngsters, the research scholars, the students, the academicians, the professionals to put their insights through their research papers and articles. And the wonderful thing that I would like to share here is that the main person who is behind this entire webinar series, as well as the Communication Today journal, Professor Sanjeev Bhanawat, he's such a person who has really made it work like anything. And fortunate that I got associated with him. Thanks, a big thanks to Professor Bhanawat to start with this webinar series and provide the opportunity to n number of people, including me as well, to come on this platform in various capacities and perform the way we are able to. Apart from that, there have been many participants who have been a regular kind with us for all our webinars in this webinar series. So I thank for all of them. I welcome each and every person to be here on this platform and wish that this webinar is also going to be with the same rainbow colors as the earlier webinars have done. So welcome you all on behalf of Communication Today. Once again, with blessings that it is going to be a wonderful day ahead. Thank you so much. Thank you so much, Professor Bhanawat, for giving me this opportunity. धन्यवाद डॉक्टर उषा साहनी। कम्युनिकेशन टुडे की ये यात्रा अपना 2.5 दशक पूरा कर चुकी है और इस वर्ष अपने रजत जयंती वर्ष में जो हमारा एक मुख्य प्रकाशन रहा वो रहा देश भर की मीडिया एजुकेशन का सर्वे। और मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारी रही कि देश का कोई प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें मीडिया शिक्षा 1 शताब्दी की यात्रा हम पूरी कर चुके हैं, उसका पूरा एक सिंहावलोकन विहंगावलोकन इसके माध्यम से हमने किया है। उसके पहले कोविड एंड मीडिया, इस पर भी लगभग 350 प्रश्नों का विशेष अंक निकाला। जिस समय एक लग रहा था सब कुछ थम सा गया है कोरोना के कारण, तब 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हमने संकल्प लिया कि इस जो नया विकल्प हमारे पास आया है, इस तकनीक ने जो हमें एक सुविधा दी है, इसका उपयोग करते हुए लगभग 100 से अधिक विशेषज्ञ देश भर के विभिन्न अंचलों में जो फैले हुए हैं, विभिन्न मीडिया के जो विषय हैं उनके विशेषज्ञ हैं, उनको हमने आमंत्रित किया। जैसा डॉक्टर उषा ने कहा, प्रोफेसर के.जी. सुरेश जो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं, हमारे पूर्व आयोजनों में आपका स्नेह सानिध्य हमको मिलता रहा है। जैसा आपको बताया गया, ये आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ लॉन्ग लाइफ लर्निंग के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। डॉक्टर जयंत विश्वविद्यालय में हमारे साथी रहे, बहुत लंबी पारी हमने इनके साथ भी खेली। विश्वविद्यालय की अनेक गतिविधियों में, अकादमिक गतिविधियों के साथ साथ एक शिक्षक नेता के रूप में भी आप एक जुझारू और संघर्षशील नेता के रूप में विश्वविद्यालय में अपनी ये कहना चाहिए कि विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में शिक्षक हितों के लिए आपकी एक लंबी यात्रा रही। मूल रूप से आप सांख्यिकी विभाग के शिक्षक रहे हैं। अकादमिक क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपके अनेक पुस्तकें, शोध आलेख प्रकाशित होते रहे हैं और फेसबुक और सोशल मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके माध्यम से मैंने तो इनको कई बार निवेदन किया कि जिस प्रकार से आप टिप्पणियां करते हैं, क्यों नहीं अपनी यात्रा वृतांत की एक पुस्तक तैयार कर लेते हैं। तो एक विज्ञान का विद्यार्थी जिसके साहित्य में इतनी रुचि हो सकती है, ये इनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर जयंत से कि वे अपने विभाग की ओर से और प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी के साथ एक लंबी जो हमारा शिक्षक संघर्ष रहा है उसमें लंबे समय तक उनके साथ आप जुड़े रहे, कुछ उनके बारे में बताते हुए हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर जयंत सिंह। सर माइक ऑन कर लीजिए, माइक। जयंत जी माइक ऑफ है आपका। हाँ, धन्यवाद संजीव भानावत सर। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले मैं प्रोफेसर संजीव भानावत साहब का इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा और उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि एक ऐसा कार्यक्रम जो हम लोग पिछले 10 साल से प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी की स्मृति में आयोजित कर रहे हैं। हम लोग प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी की स्मृति में व्याख्यान माला आयोजित करते हैं। उसके पीछे मुख्य मकसद केवल यही है कि हम अपने एक वरिष्ठ साथी जो हमारे विश्वविद्यालय में एक संस्था थे, मधुकर श्याम चतुर्वेदी के होने का अर्थ ये था कि विश्वविद्यालय में जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सब नियम से चलेंगी,
और समय समय पर उनके द्वारा शिक्षकों के हितों में, विश्वविद्यालय के हित में कार्य किए जाएंगे। प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी राजनीति विज्ञान विषय के विद्वान थे। हमारे विभाग में प्रोफेसर रहे, विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, बोर्ड ऑफ स्टडीज के कन्वीनर रहे, और साथ ही साथ मधुकर जी वो शख्सियत थे जिन्होंने कि राजस्थान और पूरे भारत में भारतीय चिंतकों को पुनः स्थापित किया। अभी तक हम राजनीति विज्ञान विषय में जब चिंतक पढ़ते थे तो ज्यादातर सब पाश्चात्य चिंतकों के बारे में बात की जाती थी, लेकिन मधुकर जी ने सबसे पहले पूरे देश में भारत के जो चिंतक थे, जो राजनीतिक विचारक थे, उनको सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया, और उसके कारण पूरे देश में भारत के विचारकों पे, भारत के चिंतकों पे अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ। तो ऐसा साथी जिसने वर्षों विश्वविद्यालय के हित के लिए काम किया हो, और विश्वविद्यालय में लगभग 300 शिक्षक ऐसे हैं जिनका भविष्य मधुकर जी से सीधा तौर पे जुड़ा हुआ है। उनकी सेवाओं को स्थायीकरण करना, उनकी सेवाओं में पदोन्नति लाना, इसके लिए मधुकर जी ने वर्षों संघर्ष किया। और मधुकर जी की सबसे खास बात यह रही कि वो सबको साथ लेकर काम करते थे, और प्रयास ये होता था कि जब भी काम किया जाए, जिस तरीके से भी काम किया जाए, तो राजस्थान विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल बेहतर बना रहे। और माहौल बेहतर होते हुए भी यहाँ पे शिक्षकों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। तो ऐसा जुझारू शिक्षक जब हम लोगों को छोड़ के 2011 में देवलोक गमन हो गया, तो उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए उनके साथ काम करने पे जो हम लोगों को अनुभव हुए, उन अनुभवों को हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को साझा करें, इस बात को ध्यान में रख के हम लोगों ने व्याख्यान माला का आयोजन किया। और मुझे खुशी है कि हमारे व्याख्यान माला में अभी तक जितने भी लोग आए, वो सब कहीं न कहीं अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग थे, विद्वान लोग थे, और उनकी व्याख्यान को सुन के हम लोगों को नए क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे स्मृति व्याख्यान माला में कप्तान सिंह सोलंकी गवर्नर जो हरियाणा के रहे, बाद में पश्चिम उत्तर प्रांत के भी गवर्नर रहे, यहाँ पे IAS राजेश्वर सिंह जी रहे जो बाद में हमारे कुलपति भी बने, कनमटिकर जी, और अनेक राजनेता जो कि जिनको कहने पर जो लोग मधुकर जी के नाम सुनकर बड़े खुशी खुशी हमारे इस कार्यक्रमों में आते थे, और अपने अलग अलग विषयों में जिस पे उनकी विशेषज्ञता थी उस पे उन्होंने आके इस व्याख्यान माला में भाग लिया। और मैंने जब आज संजीव भानावत सर से रिक्वेस्ट किया कि सर इस बार का व्याख्यान माला हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, मैंने कम्युनिकेशन टुडे के पहले के व्याख्यान में भी काम किया था, उनके साथ एक किसी कार्यक्रम में सहभागी बना था, तो मुझे पता था कि कम्युनिकेशन टुडे जो है आज की तारीख में पूरे देश में एक स्थापित मंच है, और अगर इस मंच के द्वारा हम मधुकर जी की बात करते हैं तो उसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो संजीव भानावत सर ने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया, तो मैं सर का इस बात के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उषा साहनी जी का भी इसलिए आभारी हूँ कि मैं उनके साथ काम किया था, उन्होंने याद किया, और वो इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी कि जब मैंने संजीव सर से बात किया कि सर कोई हमें एक ऐसा विद्वान चाहिए जो कि आज के प्रासंगिक विषय पे अपनी बात कह सके। आज का विषय आपको पता ही होगा कि मीडिया, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, मीडिया, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ये इस समय बहुत ही प्रासंगिक है। आज सब जगह प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, मीडिया पे प्रश्न चिन्ह है, डेमोक्रेसी पे प्रश्न चिन्ह है, डेवलपमेंट पे प्रश्न चिन्ह है। तो ये जो प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, इन प्रश्न चिन्हों का उत्तर मिलना बहुत जरूरी है। जब तक कि पूरे देश के लोगों को इन जो सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों पे अगर कोई एक ऐसा विद्वान जो कि पूरी आधिकारिक रूप से उस पर बात कहे, और जिसकी बात का वजन पूरे देश में हो, जिसको लोग सुने और महसूस करें कि जो बात कही गई है वो बात सही कही गई है, तर्कपूर्ण ढंग से कही गई है। और इसके लिए जब संजीव भानावत सर ने प्रोफेसर KG सुरेश सर से बात की और उन्होंने जब इसमें अपना सहमति प्रदान की, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे एक अच्छे शिक्षक जिसकी स्मृति में हम लोग ये व्याख्यान कर रहे हैं, जिससे राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक मानसिक रूप से और जुड़े हुए हैं, उस व्याख्यान माला में इतने बड़े विद्वान का अपना 10वां स्मृति व्याख्यान देना हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं पुनः एक बार अपने जो भी हमारे साथी सब जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि आज हमारे कुलपति महोदय सुरेश जी माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनके बारे में जब सुनेंगे, इनसे जब हम मीडिया, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट पे बात करेंगे तो हमको एक नए आयाम मिलेंगे। हमको अपनी जो आज की परिस्थितियां हैं उनमें क्या ये सब डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, मीडिया का क्या मतलब है और इनकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हमको जानने का, सुनने का अवसर मिलेगा। मैं एक बार आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
हमारे बीच मीनाक्षी जी हैं, मधुकर जी की श्रीमती जी हैं। आप मधुकर जी के साथ रह के आपने लगातार काम किया है और आज राजनीति विज्ञान विषय में मीनाक्षी जी भी एक बहुत बड़ा नाम है, इनको भी सुनना हमें अच्छा लगेगा। हमारे बीच राका सिंह जी हैं, ये मधुकर जी की पहली रिसर्च स्कॉलर हैं और राजनीति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष रही, सोशल साइंस रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर रही। तो जब इतने विद्वान और मैंने देखा स्क्रीन पे कि हमारे विश्वविद्यालय के कई शिक्षक जुड़े हुए हैं, तो मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और संजीव भानावत सर का फिर आभार करता हूं कि आपने हमारे अनुरोध स्वीकार किया और इतने अच्छे लोगों को यहाँ पे एकत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद जयंत जी। मधुकर श्याम चतुर्वेदी जी के साथ मेरा खुद का एक बहुत व्यक्तिगत संवाद और संबंध रहा है और मुझे याद आता है जब कभी उनका संदर्भ आता है, जब वो अलवर के आरआर कॉलेज के विद्यार्थी थे और मैं विश्वविद्यालय में राजस्थान कॉलेज में पढ़ता था। तब देश और प्रदेश के कई मंचों पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं में उनके साथ सहभागिता करने का अवसर मिला। तो एक विद्यार्थी जीवन के साथ जिनका संबंध रहा हो और फिर एक ऐसा मौका मिले कि विश्वविद्यालय में साथ करने का अवसर मिले, उससे बड़ा सुखद अनुभव और कोई हो नहीं सकता था। और विश्वविद्यालय सेवा के दौरान उन्होंने यूं तो मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है, उन्होंने अपने विरोधियों का भी एक तरह से सहयोग किया विश्वविद्यालय के अकादमिक मंचों पर, जिनकी बात जयंत जी ने की कि जहां बेनिफिट देने की बात आती थी तो उन्होंने व्यक्तिगत मित्रता और विचारधारा से ऊपर उठ करके सभी शिक्षक साथियों का सहयोग किया। और विशेषकर मैं उनके प्रति आजीवन इसलिए ऋणी रहूंगा कि विश्वविद्यालय में जनसंचार केंद्र की स्थापना के समय 90 के दशक में, क्योंकि किसी सरकारी संस्था के अंदर विभाग को शुरू करना और विभिन्न एकेडमिक बॉडीज हैं उनसे उसको पास कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो कदम कदम पर उनका एक सहयोग मुझे फैकल्टी के डीन के रूप में, सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर के रूप में हर जगह सहयोग समर्थन मिलता रहा। आज ऐसी शख्सियत को, ऐसे मित्र को, हमारे ऐसे सहयोगी के प्रति मैं अपनी भी एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन्हें उनका एक पुण्य स्मरण करता हूँ। जैसा जयंत जी ने कहा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में प्रोफेसर मीनाक्षी चतुर्वेदी जिन्होंने जीवन भर उनका साथ दिया और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। अकादमिक क्षेत्र में भी अनेक संगोष्ठियों में उनकी सतत सहभागिता बनी रही और विश्वविद्यालय में जब तक वो सेवा में रही, अपनी एक सक्रिय उपस्थिति से हमारे सभी मित्रों का, सहयोगियों का एक तरह से वो प्रेरणा का आधार रही है। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर मीनाक्षी चतुर्वेदी जी से कि इस अवसर पर वे भी अपने कुछ विचार हमारे साथ शेयर करें। प्रोफेसर मीनाक्षी चतुर्वेदी। धन्यवाद संजीव जी, जयंत जी, उषा जी कि आपने मुझे इस अवसर पर याद किया। मेरे लिए एक बहुत ही भावनात्मक दिन है ये, और आज एकेडमिक बात करना मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने की सदैव कोशिश करती हूँ। कम्युनिकेशन टुडे की 29th राष्ट्रीय वेबिनार वे डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग राजस्थान विश्वविद्यालय वे जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी स्मृति व्याख्यान का आयोजन आप मीडिया, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको नमन करती हूँ और बधाई देती हूँ कि इतने समय के पश्चात भी आप उस शख्सियत को जीवंत, उनके वैचारिक जो अवदान हैं उनको जीवंत बनाए रखने में योगदान कर रहे हैं, और उस योगदान की कड़ी में इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस वेबिनार के मुख्य वक्ता प्रोफेसर के.जी. सुरेश, कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल। वेबिनार के संयोजक प्रोफेसर संजीव भानावत, आयोजन सचिव डॉक्टर उषा साहनी, डॉक्टर जयंत सिंह, निदेशक डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का हृदय से स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। जयंत जी को विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो प्रारंभ में रूटा के मंच से इसका आयोजन करते थे, संयोग से इस समय वो उस पद पर नहीं है, तो उन्होंने इस विचार श्रृंखला को बंद नहीं होने दिया और अपने इस सेंटर के माध्यम से संजीव जी के सहयोग से, उनके संयुक्त तत्वावधान में इस आयोजन को जारी रखा है और उनकी यादों को जीवंत बनाया है, और उनकी जीवंत बनाने में जो सतत योगदान है उसमें कहीं बीच में कोई अवरोध नहीं होने दिया है।
प्रोफेसर चतुर्वेदी अध्ययन व अनुसंधान के प्रति समर्पण के साथ ही अपने सामाजिक सरोकारों, समस्याओं के विश्लेषण तथा अपने सहज व सरल स्वभाव व सादगीपूर्ण जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। उनके छात्र, सहकर्मी व अन्य संदर्भों में उनके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति उन्हें असीम श्रद्धा व स्नेह के साथ स्मरण करते हैं। प्रोफेसर चतुर्वेदी को उनके व्यक्तित्व के अनुसार शैक्षणिक श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए यह व्याख्यान उनके प्रति कृतज्ञता, सम्मान व स्नेह की भावनापूर्ण अभिव्यक्ति के लिए किए जाने वाला सारस्वत अनुष्ठान है। व्याख्यान के लिए जो विषय चुना गया है वह भी उनके रुचि के विषय के क्षेत्रों में से है। प्रोफेसर, जैसा कि जैन जी ने बताया कि उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन को राष्ट्रीय स्तर पर उसको स्थापित किया और वो प्रत्येक विश्वविद्यालय के सिलेबस में अब वो विषय पढ़ाए जाते हैं। उसी प्रकार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, भारतीय राजनीतिक चिंतन के साथ साथ भारतीय सरकार एवं राजनीति भी उनके अध्ययन का एक विशेष क्षेत्र रहा है। और जो विषय आपने चुना है मीडिया, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, वो भी उनके रुचि के क्षेत्रों में से ही उनका एक प्रकार से व्यावहारिक उसका आयाम है। तो इस रूप में भी आप उनको सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय संविधान में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता समाहित है, को मौलिक अधिकार का स्तर प्रदान किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जिस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया गया था, उससे आहत होने के कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि भविष्य में जब हम स्वतंत्र हों तो इस प्रकार का कुठाराघात, इस प्रकार का अवरोध आगे न उत्पन्न हो। तो इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए हमने उसे मौलिक अधिकारों में स्थान दिया और एक प्रकार से इसको सुनिश्चित करने का, उसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया। लेकिन विडंबना यह है कि हमने संविधान में तो रख दिया, लेकिन अगर हम व्यावहारिक रूप में देखते हैं तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि आज का विषय भी है, जिसमें कि मीडिया, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, कि वो संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं के अनुसार उस सीमा तक कार्य नहीं कर पाया जितनी अपेक्षा हमारी उस संविधान के निर्माण के समय थी। और किसी देश के विकास का मानदंड यह भी माना जाता है कि उस देश में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता किस सीमा तक है, उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं व्यवहार में है, सिद्धांत में हो सकती है, व्यवहार में है। प्रेस की स्वतंत्रता उतनी ही नैतिक अवधारणा है जितनी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। खबरों और लेखों को लेकर अखबारों का ढिलमुल, लापरवाही भरा और विचारहीन रवैया इस नैतिक अवधारणा को मुंह चिढ़ाता हुआ सा प्रतीत होता है। मीडिया में भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब नकद रकम या किसी दूसरे उपकार के बदले में सूचनाओं और विचारों की प्लांटिंग के बजाय के स्थान पर संस्थागत भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है, जिसके अंतर्गत अखबारों और टीवी चैनल्स को कुछ खास व्यक्तियों, कॉरपोरेट यूनिट्स, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सूचनाओं के प्रकाशन और प्रसारण के लिए धन मिलता है और इन सूचनाओं को समाचारों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्टर और संवाददाता किसी विशेष लालच के आकर्षण में अपनी रिपोर्ट बदल देते हैं। संपादकों पर भी पारदर्शिता का नियम लागू होना चाहिए। संपादक शासकों को प्रसन्न करने के लिए आज के युग में सुर अलापते हुए नजर आते हैं। और प्रारंभ में जब प्रेस की अभिव्यक्ति की बात की जाती थी तो जो प्रेस के मालिक होते थे, अखबारों के जो मालिक होते थे, वो संपादकीय विषयों पर कोई अपना हस्तक्षेप नहीं करते थे और यही अपेक्षा भी की जाती थी। लेकिन आज आप सब जानते हैं कि कोई भी संपादकीय टिप्पणी बिना मालिक की इच्छा के, और वो मालिक की इच्छा हम सब जानते हैं कि वो किन चीजों से प्रेरित और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कार्य कर रही है। भारत में अधिकांश अखबार सरकारी विज्ञापनों के प्रलोभन में फंसे रहते हैं क्योंकि वे अखबारों की आय का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। टीवी चैनल्स का भी यही हाल है। आज पत्रकारिता में लकीर के फकीर व्यवस्था तंत्र से ज्यादा लाभान्वित होते हैं। जो मेरिटोरियस लोग हैं उनकी उतनी महत्ता नहीं दिखाई देती है, ऐसा मेरा मानना। हो सकता है आप इससे सहमत ना हो। पत्रकार लोग मूल्यों और सिद्धांतों की बात तो अवश्य करते हैं किंतु भौतिक सुविधाओं के लालच से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। इस मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन के बिना विकास संभव नहीं है।
पत्रकारों को आचार संहिता का पालन करना चाहिए, वरना किसी भी तरह का नियंत्रण सेंसरशिप का रूप ले लेगा और अंकुश लगाकर आप कुछ बदल नहीं सकते। उसको कुछ समय तक आप उसको नियंत्रित कर सकते हो, उसको बाधित कर सकते हो, लेकिन अंदर ही अंदर जो ऐसा क्रांतिकारी विचार है वो पनपता है और बाद में एक विस्फोट के रूप में उभरता है। तो इस प्रकार से जो आज का विषय चयन किया गया है उसके बहुत से आयाम हैं, उनमें से जो मुझे थोड़े अपील किए वो विषय मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। और मैं पुनः आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप प्रोफेसर चतुर्वेदी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने में इस अनुष्ठान में अपना सतत योगदान दे रहे हैं। आशा करती हूँ भविष्य में भी यह योगदान और यह सक्रिय सहभागिता इसी प्रकार की रहेगी। धन्यवाद। वाणी को विराम दीजिए। धन्यवाद प्रोफेसर मीनाक्षी चतुर्वेदी जी। आपने प्रोफेसर मधुकर के व्यक्तित्व और कृतित्व, उनके योगदान अकादमिक क्षेत्र में, उसको रेखांकित करते हुए विषय के बहुत सारे पक्षों पर अपनी बात की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर के मीडिया के क्षेत्र में जिस तरह से मूल्यों का क्षरण हुआ है, इस दौर में लगभग जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हीं में जिस तरह से मूल्यों का क्षरण हो रहा है, शायद मीडिया भी उससे अछूता नहीं है। बहुत सारे प्रश्न भी आपने उठाए। हमारे बीच में जो आज विशिष्ट व्यक्तित्व है प्रोफेसर के.जी. सुरेश, उनका अनुभव मीडिया के उन अंदरूनी पक्षों को भी समझने, देखने और अनुभव करने का रहा है। और एक मीडिया शिक्षक के रूप में वो पत्रकारों की एक नई पीढ़ी को भी तैयार कर रहे हैं। प्रोफेसर के.जी. सुरेश के व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम हैं। वो एक कॉलम राइटर हैं, वो एक एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय का यूनिट है, उसके डीजी के रूप में आईआईएमसी को एक नया स्वरूप, एक उसे गतिशील, सक्रिय बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। और विशेषकर भाषाई पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में, संस्कृत पत्रकारिता, मराठी पत्रकारिता जैसे जो उपेक्षित क्षेत्र थे, उनमें भी आपने पत्रकारिता के नए पाठ्यक्रम शुरू किए। उन्होंने एक सपना देखा था आईआईएमसी को एक यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित करने का। प्रोफेसर के.जी. सुरेश, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अपने कक्ष में बैठकर के एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वालों में से नहीं है। उन्होंने हमेशा फील्ड में जाकर के, और इस कोरोना दौर में मेरे ख्याल कोई दिन ऐसा नहीं है जहां हम उनकी आभासी उपस्थिति को महसूस नहीं करते हैं। एक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, जहां पूरे विश्वविद्यालय को नेतृत्व देना, उन प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना, उसी के साथ साथ अपनी उन अकादमिक अभिरुचियों को, अपने उस अकादमिक अनुभवों को देश भर के अलग अलग मंचों पर शेयर करना, ये उनके व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यूजीसी का जो एक डिसिप्लिन है सीईसी, उसके भी आप बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर हैं। दूरदर्शन के वरिष्ठ एडिटोरियल एडवाइजर के रूप में आपने लंबे समय तक सेवाएं दी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर, चीफ पॉलिटिकल रिपोर्टर के रूप में भी आपने अनेक ऐसी देश दुनिया की घटनाओं के प्रत्यक्ष दृष्टा रहे हैं, जिन्होंने एक तरह से इतिहास को बनाया है। अनेक देशों की आपने यात्राएं की हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, न जाने कितने देशों की यात्राएं की आपने, और वहाँ की उन सारी हलचलों को अपनी एजेंसी और अपने चैनल के माध्यम से अपने पाठकों और दर्शकों तक आपने पहुँचाए। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपकी महत्वपूर्ण सेवाओं को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से आपको पुरस्कृत किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने आपको ये पुरस्कार, जो पुरस्कारों की बहुत लंबी सूची है आपके, देश के अनेक मंचों पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आप सम्मानित हो चुके हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपने जिस तरह से अकादमिक नेतृत्व दिया है, मीडिया में तो बरसों तक आपने कई चैनल्स में काम किया, एजेंसी में काम किया, वो सब चीजों को देखा, लेकिन आईआईएमसी और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के माध्यम से अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर, और एक नया सपना देखा भारतीय शिक्षा को लेकर के। आपने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सारे कोर्सेज को जिस तरह से एक नया रूप दिया है, नई शिक्षा नीति की भावनाओं के अनुरूप सारे कोर्सेज को आपने एक तरह से
उसकी पुनर्व्याख्या या उसका पुनर्गठन जो है उस करने की दिशा में, और एडमिशंस आपने शुरू कर दिए। तो मैं यूँ कहूँ कि एक विजनरी वाइस चांसलर के रूप में आपने एक लीडरशिप दी है। जयपुर से आपका बहुत गहरा संबंध रहा है। जब हमारा जो डिपार्टमेंट था सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन, उसके अनेक आयोजनों में आपकी उपस्थिति बना रही। जयपुर से आपका विशेष लगाव रहा। राजस्थान पत्रिका का झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यानमाला, उसमें भी आपने विशिष्ट व्याख्यान दिया था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसकी एकेडमिक काउंसिल के भी आप मेंबर हैं। अनेक फिल्म फेस्टिवल की जूरी के आप मेंबर रहे। फिल्म सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट कलकत्ता का है, उसके भी आप मेंबर हैं। ICSR की जो रिसर्च जो उनका कमेटी है, उसके भी आप एडवाइजर के रूप में हैं। कहने का मतलब यह है कि अकादमिक क्षेत्र की अनेक संस्थाओं में आपकी सक्रिय उपस्थिति सदा बनी हुई रही है। KG सुरेश जी बहुत सरल सहज हैं। जब जयंत जी ने कहा कि KG सुरेश जी ने बड़ी सहजता स्वीकृति दी, तो मैंने उनसे यही कहा था कि एक सामान्य विद्यार्थी से लेकर के उच्च स्तर पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके लिए भी आप सहज सुलभ उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों के साथ भी उसी तरह का स्नेह है। लेकिन प्रशासनिक कठोरता भी मैंने उनकी देखी जब IIMC के एक आयोजन में मैं गया था। जरा सी भी किसी तरह की शिथिलता को आप किसी स्तर पर महसूस नहीं करते। तो एक कठोर प्रशासक के साथ साथ एक कोमल हृदय भी आपके पास है। एक ऐसी एकेडमिक लीडरशिप आपने देश में हमारे इस अकादमिक या मीडिया क्षेत्र में दी है, उसके लिए मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आमंत्रित करता हूं। आज का जो हमारा विषय है मीडिया, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट, उसकी विस्तार अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि मीनाक्षी जी ने उसकी जो पृष्ठभूमि है, जो कुछ सवाल हैं वो उन्होंने उठा दिए हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर KG सुरेश जी से कि वो अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें। प्रोफेसर KG सुरेश जी। धन्यवाद डॉक्टर संजीव भानावत जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है सर। आप सभी को एशिया के पहला मीडिया विश्वविद्यालय और झीलों की नगरी भोपाल से आप सभी को नमस्कार। वाकई ये जो दायित्व, परिचय का दायित्व जब मित्रों को दिया जाता है तो फिर बड़ा कठिन हो जाता है कि हम उनके अपेक्षाओं पे जो है हम उतरें, क्योंकि वो एक ऐसा आपके बारे में बातें रख देते हैं कि कभी जो श्रोतागण हैं, हमारे मन में ये चुनौती आ जाती है कि क्या आपने जो चित्र प्रस्तुत किया, क्या हम उसके अनुरूप खरे उतर सकते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भानावत जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में कम्युनिकेशन टुडे और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के जो डिपार्टमेंट है, विभाग, इनके संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया। भानावत जी भारतवर्ष में मीडिया शिक्षा के साथ जिसको हम कहते हैं पर्यायवाची हैं, सिनोनिम। कम्युनिकेशन टुडे शायद कई विश्वविद्यालय और संस्थाएं इतने नियमित रूप से पत्रिकाएं नहीं निकाल पाती। मैं तो 2 बड़े संस्थाओं से जुड़ा रहा, भारतीय जनसंचार संस्थान और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय। दोनों में मुझे एक तरह से पुनर्जीवित करना पड़ा जो पत्रिकाएं जो कई सालों से बंद पड़ी थी। IMC में 10 साल से बंद पड़ी थी, तो यहाँ 2-3 साल से। लेकिन कम्युनिकेशन टुडे का यात्रा जो है वो हमेशा निर्विघ्न रहा और उसका पूरा श्रेय जो है वो प्रोफेसर संजीव भानावत जी को ही जाता है। राजस्थान से जुड़ाव का एक बहुत बड़ा कारण प्रोफेसर संजीव भानावत जी रहे हैं। मीडिया एंड डेवलपमेंट की उन्होंने बात कही तो यूनिसेफ के साथ मिलकर राजस्थान विश्वविद्यालय के मीडिया विभाग ने उनके नेतृत्व में जो संयुक्त आयोजन करते थे, फेलोशिप देते थे, वो भी मीडिया एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका रही और उसमें एक जूरी के सदस्य के रूप में कई बार राजस्थान विश्वविद्यालय आने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे सुनकर, मैं कई दिनों से सुन जरूर रहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में डॉक्टर जयंत सिंह जी निदेशक इस बैठक में है। आज हम लाइफ स्किल्स प्रोग्राम्स की बात करते हैं। आज हम कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है के आने के बाद या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद
एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बन चुका है, लेकिन शायद राजस्थान विश्वविद्यालय ने और विशेषकर प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी जी जैसे विख्यात शिक्षकों ने इसकी आवश्यकता बहुत पहले समझ लिया था, और शायद पूरे भारतवर्ष में अपने आप में एक बिल्कुल एक अनोखा विभाग ये डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहा, जिसके चलते एक शिक्षा मात्र आप यूजी और पीजी या पीएचडी तक सीमित न रहकर एक ताउम्र शिक्षा एक ऐसा जीवन का प्रक्रिया है, इसको आपने पूरे भारतवर्ष में इस संदेश को दिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मीनाक्षी जी, डॉक्टर उषा साहनी जी जो एक कवयित्री भी हैं अंग्रेजी की, और कम्युनिकेशन टुडे और राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्य विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, शोधार्थी और प्रिय छात्रों, बहुत ही एक महत्वपूर्ण, समय कम है लेकिन विषय बहुत विस्तृत है, और कुछ कुछ बातें मीनाक्षी जी ने अपनी प्रस्तुति में रखी, और मैं इस संदर्भ में अपना विनम्र श्रद्धांजलि प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी जी को भी रखना चाहता हूँ। ये दूसरा व्याख्यान है जयपुर में, भले आभासी पटल से हो, लेकिन पहला व्याख्यान प्रत्यक्ष में मुझे पंडित झबरमल व्याख्यान राजस्थान पत्रिका का कुछ वर्ष पूर्व जयपुर में आके अवसर मुझे उपलब्ध हुआ, और ये दूसरा प्रतिष्ठित व्याख्यान श्रृंखला है जिसमें भाग लेने का अवसर मुझे मिला। मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन ज़रूर उनके बारे में सुना है और आज बहुत विस्तृत जानकारी भी मिली है। मीडिया, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, कई बार इस पर चर्चाएं हो चुकी हैं। मैं अपने लगभग 35 वर्ष का अनुभव के आधार पर कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इसके 3 भाग हैं, मीडिया, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट, और तीनों में एक ऐसा अटूट संबंध भी है जो समाज के लिए बहुत ही मायना रखती है, सार्थक है। इसलिए इस अंतर संबंध को, अंतर विरोध को, दोनों को समझना बहुत आवश्यक है। मीडिया के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो, और डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो, हम अक्सर सरकारों द्वारा मीडिया पर अंकुश के प्रयास पर ही ज्यादा हम चर्चा करते हैं। वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, और अंग्रेजी हुकूमत के समय से लेकर अपने सरकारें आने के बाद भी मीडिया की एक प्रवृत्ति या प्रकृति ही ऐसी है कि मीडिया और सरकार का हमेशा एक एडवर्सेरियल रिलेशनशिप ये रहा है। ये कोई नई बात नहीं है और होना भी चाहिए। बस फर्क इतना पड़ा है अंग्रेजी हुकूमत और इस आज के सत्ता में, या आज के मतलब स्वतंत्रता के पश्चात के जो सत्ता है, कि ये लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए सरकारें हैं, जनता द्वारा चुने हुए सरकार है। तो इसलिए वो एक विरोधी या शत्रु नहीं है, और सरकार के जन कल्याण के जो प्रकल्प है, जो भी प्रयास हैं, उसको मजबूती देना, उसमें जो कमियां हैं उसका उजागर करना। और मैंने हमेशा कहा है कि जनता, मीडिया का कोई पक्ष नहीं होना चाहिए, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष, उसका एक ही पक्ष है, जनपक्ष, और जनपक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जनहित में कोई कार्य हो रहा है राज्य या केंद्र सरकारों द्वारा, उसको समर्थन देना ताकि जनता को उसका फायदा पहुंचे, उसका लाभ पहुंचे, और अगर उसमें कमी है तो उसको उजागर करना। ये दोनों ही तो जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का कार्य करना है।
लेकिन मेरे लिए लोकतंत्र के संदर्भ में बहुत बड़ा व्यापक चिंता, सरकार का तो बहुत हम चर्चा करते हैं, हम जो मीडिया जो एक सेवा भाव से लेकर एक सर्विस से एक प्रोफेशन बनना और प्रोफेशन से कमीशन बनने की जो यात्रा रही है, जिसमें पेड न्यूज, राडिया टेप्स जैसे बहुत सारे प्रकरण हुआ है, वो ज्यादा चिंताजनक है। मीडिया का जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, जहां एडिटोरियल हाशिए पर चला गया है। आज एकाध वरिष्ठ संपादकों को छोड़कर, मीडिया के छात्रों को तो छोड़िए, हम आप कितने मीडिया के संपादकों के नाम से परिचित हैं। मीडिया में एडिटर का जो पद है वो आज हाशिए पर है। आज मैनेजिंग एडिटर जैसे नए पद का सृजन हुआ है, जहां या तो मालिक ही संपादक भी होता है या संपादक मालिक का प्रतिनिधि होता है। मालिक तो नियुक्त करता है, वो बात अलग है, लेकिन मालिक के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यहां मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका आती है। संपादक आज मात्र पब्लिक प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, PRB एक्ट के अंतर्गत जो एक नियम के अनुसार एक संपादक की जरूरत होती है, जो संपादकीय के लिए जिम्मेदार है, ऐसा एक व्यक्ति का नाम ही दिया जाता है। अन्यथा अधिकतम अखबारों में आज एडवर्टाइजमेंट एवं सर्कुलेशन के जो विभाग है उनका बोलबाला चलता है। कौन से पन्ने में, कौन से पृष्ठ में कौन सा खबर लगाना है, उस खबर की साइज क्या हो, जो जैकेट है उसको पूरा का पूरा विज्ञापन, पहले 2 पृष्ठ ही आपका पूरा विज्ञापन से भरा हो, ये सारा फैसला आज हम देखते हैं कि पूरी तरह कमर्शियल दृष्टिकोण से देखा जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जब लाभ केंद्र में आ जाता है, तो लाभ जब केंद्र में आता है तो जनहित कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। टारगेट ऑडियंस महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो तथाकथित राष्ट्रीय समाचार पत्र हैं, उनकी भी सीमा तय हो जाती है। उनके लिए गुरुग्राम के, गुड़गांव शहर के जो NCR में आता है, वहां किसी पोश अपार्टमेंट में अगर पानी का भराव हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है, तो वो असम और बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है उससे भी ज्यादा महत्व रखता है और वो सुर्खियां बटोरती हैं। उनके लिए असम का बाढ़ या बिहार का सैलाब मायना कम रखती है, बल्कि वाटर लॉगिंग जो होता है वो किसी अपार्टमेंट में जहां उनकी रीडरशिप है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां किसी रिहैबिलिटेशन कॉलोनी में या झुग्गी झोपड़ी बस्ती में कोई आपराधिक घटना होता है तो वो चौथे पेज में किसी न्यूज इन ब्रीफ में सिमट जाता है। वहीं किसी पोश इलाके में कोई घटना होती है तो वो 4 कॉलम की सुर्खियों में तब्दील हो जाता है। शायद अपराध का जो बड़ा अपराध शायद उन गरीब बस्ती में हुआ होगा, लेकिन महत्व उसको नहीं दिया जाता है क्योंकि टारगेट ऑडियंस। और ऐसे में
मुझे याद आता है पी साईनाथ का एवरीवन लव्स अ गुड ड्राउट, जहां उन्होंने कहा कि विदर्भ में किसान आत्महत्याओं के दौरान मुट्ठी भर मान्यता प्राप्त अखबारी नुमाइंदे विदर्भ में पहुंचे थे, जबकि लैक्मे इंडिया फैशन वीक मुंबई में जब हुआ तो कई 100 मान्यता प्राप्त पत्रकार ने अपना पंजीकरण कराया। तो इससे पता चलता है कि हमारी प्राथमिकताएं कितनी बदल गई है। आज विज्ञापन केंद्र में आ गया है, और ये जो मॉडल है जहां 70 से 80% आपका आय का स्रोत विज्ञापन हो जाता है, तो फिर उस विषय पर हम क्या बताएं? कहां हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, कहां हम व्यापक जनहित की बात कर रहे हैं? यह चिंता का विषय है। चिंता का विषय है तो मीडिया में जो डाइवर्सिटी की आवश्यकता है वो चिंता का विषय है। चिंता का विषय है क्रॉस मीडिया ओनरशिप, जहां एक ही मालिक टीवी चैनल भी चलाता है, समाचार पत्र भी चलाता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाता है और रेडियो स्टेशन भी चलाता है। वहां डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट कहां से आएगा? उसने इंटीग्रेटेड न्यूज रूम बना रखा है। एक ही कंटेंट हिंदी में, अंग्रेजी में, अलग अलग भाषाओं में जहां जहां उस मालिक ने अपने चैनल खोल रखे हैं, उन सब में एक समान कंटेंट जाता है। क्रॉस मीडिया ओनरशिप के खिलाफ विश्व भर में कई मुल्कों में कानून हैं, नियम बने हुए हैं, लेकिन हमारे यहां बहुत खुलकर एक व्यवसाय के तहत मीडिया घरानों को हमने देखा है जो चौतरफा रेडियो से लेकर टेलीविजन, प्रिंट, डिजिटल हर क्षेत्र में हावी है। ऐसे में मीडिया डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि मोनोपोलाइजेशन हो जाता है, जिसकी हमको चिंता होनी चाहिए कि आज कंटेंट का मोनोपोली हो गया है। कुछ 2-4 मीडिया घराने आज देश के 60-70% मीडिया को कंट्रोल करते हैं। हम वैश्विक स्तर पर कहते हैं, इंफॉर्मेशन ऑर्डर की बात करते हैं कि पश्चिम के कुछ मुल्क जो हैं वो पूरे इंफॉर्मेशन ऑर्डर को नियंत्रण करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय न्यूज संवाद समितियां या न्यूज एजेंसीज वो तय करती हैं कि वैश्विक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। वो तय करती हैं कि हम पश्चिम एशिया को कैसे देखें। किसी समय में हमारे अखबार में शब्दों का प्रयोग होता था मिडिल ईस्ट। वो किसी भी दृष्टि से भारत का मिडिल ईस्ट नहीं है, वो पश्चिम के दृष्टि से मिडिल ईस्ट था। हमारे लिए वो पश्चिम एशिया है, जैसे हम दक्षिण एशिया है। लेकिन हम कई वर्षों तक, कई दशकों तक उसको मिडिल ईस्ट ही कहते रहे, कभी पश्चिम एशिया नहीं कहा हमने, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण वैसे था। हमने बहुराष्ट्रीय दृष्टिकोण से पूरे विश्व को देखने का प्रयास किया। कभी हमने ये नहीं प्रयास किया कि भारत पूरे विश्व को, भारत जैसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत जो जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है, भूमि के दृष्टि से 7वें स्थान पर है, ये भारत, हम विश्व को कैसे देख रहे हैं? हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की, लेकिन हमारा वैश्विक दृष्टिकोण पश्चिमी मीडिया के घराने तय करते हैं। इसी प्रकार कुछ मुट्ठी भर मीडिया घरानों के माध्यम से ही आज हम पूरे भारत को भी देखते हैं। हाँ, डिजिटल मीडिया के आने के बाद एक बड़ा फर्क जरूर आया है, लेकिन वहां भी प्रश्न ये है कि ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, एक आध को छोड़कर, वो कहीं ना कहीं पश्चिम द्वारा प्रायोजित प्लेटफॉर्म है, वो भारतीय प्लेटफॉर्म नहीं है।
क्या वो समय नहीं आ गया जब परम सुपर कंप्यूटर बनाने वाले सिलिकॉन वैली को पूरी तरीके से, जिस पर हावी एक समाज, भारतीय समाज, क्या हमारे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स गूगल जैसे, फेसबुक जैसे, ट्विटर जैसे होने नहीं चाहिए, जिसका स्वीकार्यता भी उतना ही हो? ये भी आवश्यक है। कुछ प्रयास जरूर कू जैसे कुछ प्लेटफॉर्म जरूर भारतीय स्थापित किए हैं भारतीय स्टार्टअप्स ने, लेकिन उनकी व्यापकता, उनकी स्वीकार्यता, जैसे चैनलों की मैं बात कर रहा था, हर मुल्क का अपना चैनल है। फ्रांस 24 है, फ्रांस का, चाइना का चाइना सेंट्रल टेलीविजन है, रशिया का रशिया टुडे है, CNN इंटरनेशनल इत्यादि अमेरिका के पास है, ब्रिटेन का BBC है। क्या भारत का अपना भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए? ये भी विचारणीय है। मीडिया और डेमोक्रेसी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत के पक्ष को रखना, भारत के लोकतंत्र, भारत के मानवाधिकार के दृष्टिकोण से हम वैश्विक स्तर पर हस्तक्षेप कर सके, अपनी बात को रखें। हमारी अपनी समस्याएं बहुत हो सकती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आज दूसरे विश्व युद्ध के बाद लोकतंत्र जिन विकासशील मुल्कों में स्थापित हुआ, उनमें कुछ ही मुल्क रहे हैं जो आज भी मजबूती से, एक 75 से 77 का एक काल को छोड़ दें हम, आपातकाल को, तो हम पूरी तरह लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े रहे। अब उसकी गुणवत्ता और वो कितना असरदार है, ये एक विषय चर्चा का है। लेकिन हम हर 5 वर्ष में हमारे जनता के पास, हमारे आवाम के पास एक हथियार मिलता है, सरकारों को चुनने का, सरकारों को हटाने का। ये हमें एक आज भी अवसर प्राप्त है जो कई मुल्कों में प्राप्त नहीं है। मीडिया में जब मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूं, तो क्या आज मीडिया वॉइस ऑफ द वॉइसलेस है? क्या मीडिया आज बेजुबानों की जुबान है क्या? उसमें जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, इन सब को आप सिंगल डिजिट में, कोई भी अध्ययन हुआ है वैश्विक स्तर पर, भारतीय स्तर पर, उसमें यह पाया गया है कि इसका कवरेज सिंगल डिजिट में है, यानी कि कोई 5% तो कोई 4% कवरेज मिलता है। तो हम किस तरीके से इसको डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? इसमें जो लोगों का प्रतिनिधित्व है, क्या वो लोकतांत्रिक है? क्या समावेशी है? क्या इसमें हर जाति, हर मजहब के लोगों का प्रतिनिधित्व है या नहीं? मैं कोई आरक्षण का वकालत नहीं कर रहा हूं मीडिया में, लेकिन मीडिया में एक प्रयास होना चाहिए कि हम सभी समुदायों को, सभी जातियों को, जनजातियों को, अनुसूचित जातियों को, पिछड़े वर्गों को, सभी भाषा भाषियों को, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करें। मीडिया में जब हम रिक्रूटमेंट होता है तो वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होना चाहिए पश्चिमी मुल्कों में, लेकिन वो मात्र सांकेतिक नहीं होना चाहिए, प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए, वो सब्सटैंशियल होना चाहिए rather than being symbolic। हमारे एक मित्र हैं, सिख हैं, उनको एक अंतरराष्ट्रीय चैनल ने मात्र इसलिए चयन किया, उनकी क्षमता भी है, ऐसी बात नहीं है कि उनकी क्षमता नहीं है, लेकिन एक बड़ा कारण यह था कि वो पगड़ी पहनते थे और वो अपने अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में ये दिखाना चाहते थे कि एक बहुत अल्पसंख्यक समाज को भी हमने अपने मीडिया डाइवर्सिटी में हमने एक जगह दी है, उनका भी एक प्रतिनिधित्व है इसमें। ये बहुत आवश्यक है।
कि मीडिया का प्रतिनिधित्व को सर्व समाज को लेकर यह बहुत आवश्यक है। और यह सिर्फ प्रतिनिधित्व से नहीं चलेगा, क्या उनके आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, शिकायतों को प्रतिबिंबित भी करती है या नहीं? क्या सभी वर्गों के चिंताओं को वो अपने पृष्ठ पन्नों में प्रतिबिंबित करती है या नहीं, अपने संपादकीय में प्रतिबिंबित करती है या नहीं? या हम दलित सशक्तिकरण का मामला तभी उठाते हैं जब कोई उत्पीड़न का मामला आता है, या एक सतत आंदोलन के तहत जिस तरीके से गांधी जी ने अपने हरिजन यंग इंडिया, नवजीवन के माध्यम से, या बाबा साहब अंबेडकर ने अपने मूक नायक के माध्यम से जिस तरीके से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, मानसिकता में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, वैसा प्रयास हो रहा है या नहीं? एक मुहिम के तहत, एक आंदोलन के तहत वो मीडिया कैंपेन्स हैं या नहीं आज? यहां हम बिल्कुल सतही विषयों पर चल रहे हैं। यह भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आज मीडिया और डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यह भी आवश्यक है हम मीडिया और डेवलपमेंट की बात भी करें, क्योंकि यह विषय मीडिया, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट को लेकर। डेवलपमेंट यानी क्या? क्या डेवलपमेंट मात्र सड़कें बनना है? डेवलपमेंट यानी कि ढांचागत विकास है, या डेवलपमेंट वो है जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करता हो? क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कितने मजबूती से काम करते हैं, कितनी अच्छी सेवाएं दे पाते हैं? प्राइमरी स्कूल्स ग्रामीण क्षेत्रों में, उनमें छत है, उनमें बैठने के लिए बेंच और डेस्क है, वहां पेयजल की व्यवस्था है, वहां शौचालय की व्यवस्था है, वहां अध्यापक पढ़ाने जाते हैं, वहां की गुणवत्ता क्या है, वहां का मिड डे मील स्कीम में वहां किस तरह का पौष्टिक आहार दिया जाता है, कुपोषण, उस विषय पर क्या किया जा रहा है स्थानीय राज्य प्रशासन द्वारा? क्या इन विषयों पर हमारा ध्यान है? अक्सर हम कहते हैं, क्योंकि मैं, भानावत जी ने जिक्र किया कि मेरा दूरदर्शन से भी बड़ा पुराना संबंध रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आज दूरदर्शन और आकाशवाणी आज ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, कृषि क्षेत्रों के बारे में किसी और मीडिया से ज्यादा बात करती है। लेकिन वहां मेरे लिए एक प्रश्न यह है कि वहां एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। वहां जो हम बात करते हैं वो सरकार के पहल, सरकार की योजनाएं, उनके क्रियान्वयन तक सीमित रहता है। जनता की क्या अपेक्षाएं, जनता का फीडबैक क्या है, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या सच में अगर जनधन योजना या उज्ज्वला योजना के अंदर किसी को लाभ नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? ये बातें भी करना आवश्यक है। उनको शिक्षित करना, उनके अंदर जागरूकता पैदा करना, इसमें बहुत अहम भूमिका आकाशवाणी और दूरदर्शन का है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है जमीनी स्तर पर? डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का किस तरीके से फायदा हो रहा है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कितना सुचारू रूप से कार्य चल रहा है? राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत क्या जो कागजों में जो कुएं और तालाब खोदे जा रहे हैं वो सच में खोदे जा रहे हैं या नहीं? इन विषयों पर भी मीडिया को चर्चा करने की आवश्यकता है।
आंकड़ों की सच्चाई को समझना भी डेटा पत्रकारिता के अंतर्गत, सूचना के अधिकार के अंतर्गत मीडिया को इन विषयों पर भी काम करने की आवश्यकता है। सरकार को भी, लोकतंत्र में सरकारों को भी मीडिया को एक विरोधी की तरह नहीं देखना चाहिए। मीडिया को एक विकास में सहभागी की तरह देखना चाहिए, एक पार्टनर की तरह देखना चाहिए। लोकतंत्र में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए मीडिया और सरकार के पार्टनरशिप की आवश्यकता है, विरोध की नहीं, कन्फ्रंटेशन की नहीं, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की आवश्यकता है। और एक दूसरे को विरोधी न मानकर जनहित में काम, आपका उद्देश्य भी जनहित है, मेरा उद्देश्य भी जनहित है, व्यापक जनहित, हमको मिलकर कुछ क्षेत्रों में काम करना है। जहां विरोध है वहां विरोध है, जहां भ्रष्टाचार है उसको उजागर करना है, जहां नियत में खोट है उसको उजागर करना है। लेकिन कई ऐसे योजनाएं हैं, अब कोविड का ही रहा, ये कोविड के खिलाफ जो युद्ध है वो कोई सरकार अकेले नहीं लड़ सकती है, वो जनभागीदारी के बगैर नहीं लड़ सकती है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया की है, और मीडिया ने काफी हद तक निभाई भी। जनता के बीच में कोविड को लेकर एक जागरूकता पैदा करने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही। कई हमारे मीडिया कर्मी वो अपने कर्तव्य के मार्ग पर उन्होंने अपने जीवन की तिलांजलि दी। कई बीमार हुए, कईयों ने अपने करीबियों को खोया, फिर भी शमशान घाटों से लेकर कंटेनमेंट जोन से लेकर कोविड हॉटस्पॉट से लेकर आईसीयू तक मीडिया कर्मियों ने अंतिम पंक्ति के कोविड योद्धा की भूमिका उन्होंने निभाया, और यह सराहनीय है। 700 से ऊपर मीडिया कर्मी उनके प्राण इस पूरे दौर में जो है उन्होंने खोया है। कुछ राहत भी सरकार की तरफ से, कुछ सरकारों की तरफ से हुआ है, उनको कोविड योद्धा भी को प्राथमिकता भी दी है, उनको टीकाकरण इत्यादि में। कईयों ने नौकरी खोई, वो भी चिंता का विषय है जब हम मीडिया एंड डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो मैं मानता हूं कि मीडिया घरानों में मुनाफा जितना पहले कमाया जा रहा था उतना नहीं हुआ। विज्ञापन बंद हुए क्योंकि बिक्री ही नहीं हो रही थी, तो विज्ञापन कम हुए। लेकिन उसको एक ढाल बनाकर कई पत्रकारों को, कई बड़े मीडिया घरानों ने नौकरी से बेदखल भी कर दिया, तनख्वाहें भी काट दी गई। यह भी एक सत्य है। यह भी डेमोक्रेसी के लिए मैं मानता हूं कि बहुत घातक है। एक समय था जब मीडिया ट्रेड यूनियन बहुत प्रभावी हुआ करते थे। आज कुछ चंद अखबारों और एजेंसियों को छोड़कर आज एक बहुसंख्यक, बहुत बड़े तादाद में पत्रकार आज कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर हैं। उनके सर पर तलवार लटकी रहती है। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी हैंग्स ओवर देयर हेड ऑल द टाइम। आज नौकरी है, कल नहीं है। ऐसे में हमको अब पत्र और पत्रकार दोनों को अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। पत्रकार और पत्र, समाचार पत्र दोनों अलग है। समाचार पत्र एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है और पत्रकार केवल एक मजदूर है। आज उसकी नौकरी है, कल उसकी नौकरी नहीं है और उसकी मजबूरी है। कुछ चंद लोगों को छोड़कर
जो अच्छे आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, बाकी लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं और वही लिखने, बोलने, दिखाने में मजबूर होते हैं जो उनके मालिक चाहते हैं। और मालिक के लिए मुनाफा सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। जहां जैसे मीनाक्षी जी ने बताया कि समाचार भी प्रकाशित किए जाते हैं मुनाफे के एवज में, पेड न्यूज का हमने देखा, तो क्या वो समय आ गया है जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम स्वतंत्र मीडिया की ओर जाएं? वो मीडिया जो बेजुबानों की जुबान बने, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग इनका प्रतिनिधित्व करें और हम सबको न सिर्फ सूचित और शिक्षित करें बल्कि प्रेरित करें। लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी ने तो वो व्यवस्था कर दी है। आज कई बड़े पत्रकार पूर्व में जो बड़े तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया में रहे हैं, आज वो अपना यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म सब चला रहे हैं। लेकिन क्या वो भी एजेंडा के तहत ही चला रहे हैं? उनका भी अपना एजेंडा है क्या? या उनका एजेंडा मात्र जनपक्ष है, जनहित है, या वो किसी राजनीतिक दलों के टूल बन गए हैं? मैं अक्सर कहता हूं वैचारिक या किसी एक अखबार का विचारधारा होना वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात है उसका राजनीतिक होना। सबकी एक अवधारणा है राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के प्रगति के प्रति, उसके आर्थिक नीतियों के प्रति, उसके सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति। तो इसलिए आज से नहीं, पहले से ही हम लोग कई अखबारों को कई श्रेणी में हम बांट चुके हैं कि फलान प्रो लेफ्ट है, फलान प्रो राइट है, फलान प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, फलान प्रो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। हमने ऐसे टैग और लेबल दे दिए हैं कई अखबारों को, आज से नहीं दिया है। लेकिन ये प्रो या एंटी प्रतिबिंबित होता था संपादकीय पृष्ठ में, द एडिटोरियल पेज और द एडिटोरियल। माई प्रॉब्लम इज when your voting preferences find reflection in your news reporting। जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, क्या उसमें आप राजनीतिक चश्मा पहनकर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तब समस्या होती है। क्योंकि मीडिया की एक अहम भूमिका जनमत तैयार करना है, लोकतंत्र में एक जागरूक मतदाता तैयार करना है, जो एक एनलाइटेंड चॉइस, ताकि वो अपने एनलाइटेंड चॉइसेस दें, जातिगत आधार पर नहीं, मजहबी आधार पर नहीं, विकास के पैमाने पर, सुचिता के पैमाने पर, पारदर्शिता के पैमाने पर, सुशासन के पैमाने पर अपना जनमत दे। वो आवश्यक है। लेकिन उसकी जगह जब मीडिया की रिपोर्टिंग संकीर्ण और संकुचित हो जाती है, तो वो चिंता का विषय है। वो लोकतंत्र के मूल भाव के खिलाफ है। इसलिए संपादकीय पृष्ठ वो आपका अपना पृष्ठ है। हम जानते थे एडिटोरियल लाइन हर समाचार पत्र का, न्यूयॉर्क टाइम्स का भी है, वॉशिंगटन पोस्ट का भी है, वॉशिंगटन टाइम्स का भी है। अगर वॉशिंगटन पोस्ट
लेफ्ट लिबरल माना जाता है यूएस में, तो वॉशिंगटन टाइम्स जो है राइट विंग माना जाता है। यह हर मुल्क में है। लेकिन रिपोर्टिंग जो है वो जब इंटरप्रिटेटिव हो जाता है, रिपोर्टिंग एनालिटिकल हो जाता है, तब दिक्कत पैदा करती है। फिर वो अपने अपने दृष्टिकोण से उसको जो है न्यूज को प्रस्तुत किया जाता है। न्यूज का विश्लेषण करना अलग बात है, लेकिन न्यूज का प्रस्तुतिकरण वो जब दृष्टिकोणों से प्रभावित हो जाता है तब वो लोकतंत्र के लिए घातक है। क्योंकि ये मीडिया की जो भूमिका है वो एक जागरूक मतदाता को लोकतंत्र में तैयार करना है, जो न सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में सजग है बल्कि उसको जानकारी है सभी विषयों के बारे में, और वो तय करता है। भारत का मतदाता के अंदर वो क्षमता है। उसको भले आप कहे कि इतना प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन उसने बार बार दिखाया है अपना सूझबूझ को। उसने 1977 में भी दिखाया। उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं थी, कोई डिजिटल मीडिया नहीं थी, टेलीविजन का भी कोई खास प्रभाव नहीं था। लेकिन मीडिया का दायित्व बनता है कि उसको सभी पक्षों से उसको अवगत कराएं, और समझने का विवेक उसमें है। यह बहुत आवश्यक है कि एक सिक्के के दो पहलू है। सभी पक्षों से अवगत कराना जो है, आज उसको 4 अखबार पढ़ना पड़ता है, 4 चैनल देखने पड़ते हैं, तब जाके उसको थोड़ा बहुत अलग अलग पक्षों का समझ में आता है। यह आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मीडिया और डेवलपमेंट में डेवलपमेंट अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। महात्मा गांधी ने दरिद्र नारायण की बात कही। वो अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, लास्ट मैन इन द लाइन शुड बेनिफिट। क्या उसको हम सुनिश्चित करते हैं? क्या उसके हित को हम सामने रखते हैं? या टीआरपी, सर्कुलेशन वॉर, प्रॉफिट ड्रिवन, उसके लिए हमने तिलांजलि दी है? एक लोकतंत्र में मीडिया अगर पूरी तरह कमर्शियल हो जाए, पूरी तरह प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाए, तो वो चिंता का विषय है। उसको एक इंडस्ट्री के रूप में देखा जाता है जहां मुनाफा केंद्र में हो जाता है। मैं ब्रेक इवन समझ सकता हूं, नो लॉस नो प्रॉफिट समझ सकता हूं। तो हमें इंडिपेंडेंट मीडिया की जरूरत है, हमें ट्रस्ट मॉडल्स की जरूरत है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक ट्रस्ट मॉडल है, ट्रिब्यून एक ट्रस्ट मॉडल है, उड़ीसा में समाज एक अखबार है जो ट्रस्ट मॉडल है, जहां आप व्यापक जनहित को देखते हुए उसमें लक्ष्य मुनाफा नहीं है। ऐसे एक मीडिया की हमें आवश्यकता है जो निर्दलीय हो, स्वतंत्र हो, और हमें भी उस मानसिकता परिवर्तन की आवश्यकता है। हम 400 रुपए का पॉपकॉर्न मल्टीप्लेक्स में खरीद लेते हैं, लेकिन 40 रुपए जिसके प्रोडक्शन में खर्चा होता है, ऐसे अखबार को हम 4 रुपए में चाहते हैं। तो जब 40 रुपए का अखबार हम 4 रुपए में खरीदते हैं, तो जो 36 रुपए देता है, तो वो तो जरूर अपने हित की बात करवाएगा। हम ये ना उम्मीद करें कि हम 4 रुपए भी दें और मीडिया जो है वो 40 रुपए की हमारे पक्ष में बात करें। ये तो असंभव है, ये प्रायोगिक नहीं है।
मैं जानता हूं कि मैंने शायद अपना समय सीमा का उल्लंघन किया है। भानावत जी थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं। मैं अंत में बस जी। इतना ही कहूंगा कि जिस तरह एक सशक्त लोकतंत्र के लिए एक जागरूक मतदाता की आवश्यकता है, उसी प्रकार एक सशक्त सक्रिय मीडिया के लिए एक जागरूक पाठक, एक जागरूक दर्शक और एक जागरूक श्रोता की आवश्यकता है। आपने मुझे समय दिया भानावत जी, आपने मुझे ये अवसर दिया कि इतने प्रतिष्ठित एक व्याख्यान माला में मैं भाग लूं। मैं पुनः प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग और कम्युनिकेशन टुडे को पुनः बधाई देता हूं कि वो इसी तरह नियमित तौर पर समाज में मीडिया के प्रति एक जागरूकता, मीडिया साक्षरता की दिशा में आप ऐसे सार्थक कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर के जी सुरेश जी। आपको सुनना हमेशा ही एक विशेष लाभ का कारण रहा है। हमारे जो प्रतिभागी इसमें जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए, प्रोफेसर के जी सुरेश जी मूलतः मलयाली भाषा के मूल, कहना चाहिए कि वहाँ केरल के मूल निवासी है, लेकिन जिस धारा प्रवाह ढंग से आप हिंदी बोलते हैं, अन्य भाषाओं पर तो अधिकार है ही, लेकिन जिस धारा प्रवाह अंदाज में आपने अंग्रेजी हिंदी में अपनी बात रखी है, ये अपने आप में हम सभी के लिए एक प्रेरणा का आधार बन सकती है कि किस प्रकार हम दूसरी भाषाओं के प्रति भी सम्मान करना सीखें। आपने पत्रकारिता की उस पूरी परंपरा को, आपने सेवा भावना से बात शुरू की, मिशन से बात शुरू की और कमीशन तक लेकर के आए। किस तरह से मीडिया के क्षेत्र में मूल्यों का क्षरण चिंताजनक है, किस तरह से पत्रकारिता एक पक्ष विशेष का साथ देकर के अपने जो उसके प्रति मूल एक जो उनके सरोकार हैं उनसे दूर हट रही है। आपने बहुत सारे उदाहरण भी दिए कि किस तरह से आज के दौर में जो पत्रकारिता है वो अपना एक स्वरूप ग्रहण कर रही है, किस तरह से संपादकीय संस्था का क्षरण हो रहा है। आपने सही कहा, एक दौर था जब हम इस तरह के व्याख्यानों में अपने अखबारों के संपादकों को उद्धृत करते थे, कोट करते थे। अब अधिकांश विद्यार्थी पाठक उस संपादक नाम के उस जिसको हम हार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर कहा करते थे परिचित नहीं है। आपकी ये चिंता कि 40 रुपए का अखबार 4 रुपए में खरीदा जा रहा है, यही चिंता हमारे इन चैनलों के साथ भी है। जब प्राइम टाइम, चाहे वो रेडियो है चाहे टेलीविजन है, मल्टीनेशनल्स बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खरीद लिया है, हम अभिशप्त हैं वही सब कुछ देखने सुनने के लिए। इसलिए क्या विशेषकर इस कोरोना काल ने शायद उस आवश्यकता को महसूस किया कि एक नया रेवेन्यू मॉडल, जिस सोशल मीडिया की आपने बात की कि आज ठीक है उसका भारतीय स्वरूप भी हो सकता है बहुत जल्दी हमें देखने को मिले, इस तरह के प्रयत्न गवर्नमेंट की तरफ से प्रयत्न, उसकी गाइडलाइंस ये सारी जारी हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से भ्रामक न्यूज़ की समस्या आई है, फेक न्यूज़ की समस्या आई है, मुझे लगता है आपने जो चिंताएं प्रकट की हैं उसमें कहीं हम जो नया बिजनेस मॉडल है कि हम खुद पे करें सही सूचना के लिए, जब हम जीवन के और पक्षों पर स्वयं खर्च करते हैं तो क्यों नहीं सही सूचना, सार्थक सूचना, सटीक सूचना प्राप्त करने के लिए हम खुद पे करें। इस तरह के प्रयोग भी उन चैनल्स ने शुरू किए हैं। आपने अपने अनुभव से मीडिया के उन अंदरूनी हालातों को लेकर के किस तरह से विकास की स्थितियां उपेक्षित रही है, वो दौर, क्योंकि आपको अक्सर सुनने का मौका रहा, कई बार आपसे संवाद हुआ, जो कंटेंट की आप बात करते रहे, कंटेंट इज किंग, वो जो उसकी विषय वस्तु है, उसकी जो महत्ता है किसी भी मीडिया हाउस के लिए, उसको कैसे हम वापस स्थापित करें। क्योंकि वो दौर आजादी का दौर जिसमें एक एक शब्द क्रांति उगलता था, जिस आपने बार बार कोट किया हमारे उन पूर्व पत्रकारों को, गांधी से लेकर और पत्रकारों को, उनका एक एक शब्द किस तरह से अपने पूरे परिवेश को प्रभावित करके पूरी वैचारिक चेतना को, वैचारिक ऊर्जा को
या कहूँ कि एक विचार अभियान को लेकर के हम अगले इसी महीने में स्वाधीनता का दिवस मनाने जा रहे हैं, 75 साल पूरे हो रहे हैं। उस आज़ादी को प्राप्त करने में जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात से मीनाक्षी जी ने बात अपनी शुरू की थी, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कितने कलमकारों ने अपना बलिदान दिया, उस पूरी हमारी जो उस भूमिका है उस पर आपने बहुत ही सहज और विचारपरक ढंग से अपनी जो टिप्पणियां की हैं, जिस कॉरपोरेशन और कोलैबोरेशन की आपने अपेक्षाएं की हैं, जिस कॉर्पोरेटाइजेशन के प्रति आपने चिंताएं प्रकट की हैं, भारतीय माध्यम किस तरह से भारतीय परिवेश में, चाहे वो कृषि की समस्या है, चाहे वो रोजगार की समस्या है, या जो डे टू डे की हमारी समस्याएं हैं, जिस तरह से आम आदमी जूझ रहा है, उसकी उस पीड़ा को, व्यथा को ये संचार माध्यम किस तरह से अभिव्यक्ति दे सकते हैं। आपने बहुत ही विस्तार से अपने अनुभव हम सभी के साथ शेयर किए। आपने इतना समय दिया, हम बहुत बहुत आभारी हैं। इस उम्मीद में कि जब भी मौका मिलेगा आपके इन विचारों से हम लाभान्वित होते रहेंगे। अब औपचारिक आधार प्रदर्शन के लिए, औपचारिक तो क्यों कहूँ, बल्कि एक चूंकि एक इतना आत्मीय माहौल में ये सारा आयोजन हुआ है, भाई मधुकर श्याम चतुर्वेदी जी, एक दशक जयंत जी ने मुझे अवसर दिया पूर्व के व्याख्यानों में भी उन आयोजनों को संचालित करने का, तो मैं अपनी ओर से भी उनके प्रति आभारी हूँ कि हमारे उस पूर्व मित्र और सहयोगी की उन दिवंगत स्मृतियों के साथ आपने किसी न किसी रूप से हमें जोड़ा रखा है। और क्योंकि ये भी मुझे लगता है एक बहाना है, जीवन का अंतिम सत्य है, हमें स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन जन्म तिथियां और पुण्य तिथियां मनाने के पीछे भाव यही है कि उन पुण्यात्माओं ने जिन मूल्यों के लिए जीवन जिया है, कहीं हम उनका भी अनुसरण करते हुए हमारे इस विचार यज्ञ में कहीं अपनी आहुति दे करके हमारे से सामाजिक अपेक्षाएं, समाज को है, शैक्षिक सरोकारों की जो अपेक्षाएं हैं, उनको कहीं हम पूरा करने की दिशा में अपना विनम्र योगदान दे सकें। मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राका सिंह। जैसा डॉक्टर जयंत ने बताया कि वो उनकी पहली शोधार्थी रही, राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष रही हैं, हमारे यहाँ सोशल साइंस रिसर्च सेंटर है उसकी डायरेक्टर रही हैं, अकादमिक क्षेत्र में उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, और अनेक आयोजन उन्होंने अपने लीडरशिप में विश्वविद्यालय में आयोजित किए हैं। बहुत निकटता से मैंने उनकी उस सक्रियता को राजस्थान कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल के रूप में देखा और समझा है। जिस तरह से उन्होंने एक तरह से अपने गुरु के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए अपने आप के व्यक्तित्व को जिस तरह से विकसित किया है, इस अवसर पर मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी की पहली शोधार्थी डॉक्टर राका सिंह को कि इस अवसर पर हम सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपने भावोद्वेग प्रकट करें। डॉक्टर राका सिंह, माइक ऑफ है। राका जी माइक ऑफ है। कम्युनिकेशन टुडे 29th वेबिनार सीरीज और DLL के तत्वाधान में मधुकर श्याम चतुर्वेदी स्मृति व्याख्यान माला 10 का आयोजन किया गया है। ये मधुकर श्याम चतुर्वेदी सर की जो ये व्याख्यान माला रखी जाती है, पहली बात तो जब ये रखी जाती है मुझे इस पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि सर इस संसार से जब से गए हैं कभी मैंने माना ही नहीं कि वो यहाँ से चले गए हैं। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हमें ये लगता है कि मधुकर सर ने ये प्रोग्राम किया है और हमें इनवाइट किया है कि तुम इस प्रोग्राम को थोड़ा देखो। तो सर को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ और सर की कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ। सर इतने सरल स्वभाव के थे, उनके पास कोई भी जाता था, चाहे कोई छोटा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, स्टूडेंट है, कोई प्रोफेसर है, सबसे वो एक सही व्यवहार करते थे। इतना सरल स्वभाव था कि हर व्यक्ति की वो समस्या का समाधान करते थे, सहयोग करते थे। मुझे ध्यान है एक बार मैं उनके साथ जोधपुर जा रही थी, बीच रास्ते में कुछ काम चल रहा था तो डाइवर्ट होके जाना था, कार रुकी क्योंकि सामने एक ट्रक खड़ा हुआ था। हम घंटा 1.5 घंटा खड़े रहे, तब हमें पता चला कि वहां पर ये ट्रक वाला ड्राइवर नहीं है। कुछ समय बाद दूसरे ट्रक वाले ने कहा कि अरे ये ट्रक वाला तो वहां बैठा है, और वो बैठ के गाजर खा रहा था। तो आप ये देखिए इतने मृदुभाषी थे कि हम में से कुछ लोग तो उस ड्राइवर के ऊपर नाराज होने लगे कि भैया आपने बीच में खड़ा कर दिया, लेकिन उन्होंने हंसते हुए ये कहा, अरे बारे ये तूने क्या कर दिया, इतनी देर से तू यहाँ बैठा है कि हम सब लोग परेशान हो रहे हैं और तूने हमें बताया ही नहीं। तो ये चीजें, ये उनका स्वभाव ऐसा था जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। और मैं तो ये मानती हूँ कि वो मेरे फिलोसफर के रूप में, गाइड के रूप में, यहाँ तक कि गार्जियन के रूप में रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर हालात में मेरी हेल्प की है।
और आप मानेंगे नहीं, मैं अलवर की रहने वाली हूँ, वहां भी एमए पॉलिटिकल साइंस था, लेकिन इनाक्षी दीदी की फ्रेंड मेरी बड़ी वाली सिस्टर थी, उसने कहा नहीं मैं एमए जयपुर से ही कराऊंगी। और आप ये देखिए कि एमए मैंने किया, फिर एमफिल किया, पीएचडी किया, और आज मैं इस मुकाम पर बैठी हुई हूँ। ये सारा श्रेय मैं मधुकर सर को ही देती हूँ कि यदि वो नहीं होते तो मैं कभी भी विश्वविद्यालय में नहीं आ पाती। तो श्रद्धांजलि के रूप में मैं उनके लिए इतना ही कह सकती हूँ कि सर के बताए हुए कामों के लिए या उनके जो पद चिन्ह हमें उन्होंने दिखाए हैं उन पे ही हम चलते रहें, तो शायद मेरे लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। कभी मैं अपने आप को इतना ऊंचा महसूस नहीं करती, क्योंकि मधुकर सर के काम, उनकी चीजें ऐसी थी कि जिनके सामने हम उनसे अपनी तुलना कर ही नहीं सकते। आज क्लास अब में देखिए, जिस समय मैं पढ़ाती हूँ, हमें लेक्चर देने का पूरा उन्होंने ही ज्ञान हमें दिया। वो हमें 10 मिनट का समझाते थे और हम जाके 1 घंटे का अपना लेक्चर देते थे। कभी मैं कुछ लिख के नहीं गई, क्योंकि मधुकर सर की ये शैली हमें बहुत पसंद आती थी कि किसी भी विषय पर बोलना होता था, वो बिना देखे घंटों बोल लेते थे। तो इससे हमने उनसे कुछ चीजें ली, और शायद आज ये स्थिति है कि मैं कोई लेक्चर दे देती हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती। तो मधुकर सर की हम जितनी बात भी करें उतना कम है, क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं कि उन्होंने अपने इस छोटे जीवन काल में इतने बड़े बड़े काम कर दिए, उन्हें लोग राष्ट्र में क्या अंतरराष्ट्रीय जगत में भी उनकी पहचान अपनी बनी हुई है। इस संबंध में आज हमारे बीच प्रोफेसर केजी सुरेश, वाइस चांसलर माखनलाल चतुर्वेदी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल के हैं। और मैं ये मानती हूँ सर, आपका नाम जैसे आया और भोपाल का नाम जैसे आया, मुझे पता नहीं कोई एक अपनापन सा लगने लगा। उसके पीछे मैं आपको कारण बता देती हूँ कि राजस्थान कॉलेज में जिस समय मैं वाइस प्रिंसिपल थी, हमने इतने एग्जाम आपके कराए, इतने एग्जाम कराए, क्योंकि 6-6 महीने में एग्जाम होते रहते थे। तो जैसे इस यूनिवर्सिटी का नाम आया, आपका नाम आया, मुझे लगा कि सर तो अपने हैं। और सर जो आपने अपनी बातें कही, उन बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मीडिया डेवलपमेंट के रूप में, डेमोक्रेसी के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मीडिया के कुछ लोग, जो पत्रकार हम कहते हैं, पत्रकार की कई बार परेशानी ये भी रहती है कि जब उसे काम दिया जाता है, ना तो उसका इंश्योरेंस किया जाता है, ना ही उसे अच्छी तनख्वाह दी जाती है। अपनी जान पर खेलकर, आप देखिए, चाहे उत्तराखंड की बात हम करें, कोरोना वॉरियर की बात हम करें, चाहे हम चाइना की बात करें, ऐसी जगहों पर वो अपनी जान पर खेल के जाते हैं, लेकिन इंश्योरेंस जैसी चीज मुझे बहुत कम दिखाई देती है। और शायद यही कारण है कि पत्रकार को जब दूसरी जगह से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो वहां पर चला जाता है। हम कहते हैं कि मीडिया सत्य बात को हमारे सामने नहीं रखता, इसके पीछे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही मैं कारण मानती हूँ। सत्ता पक्ष ये चाहता है कि हमारी बातें ही रखे जाएं, विपक्ष हमेशा उसका अपोजिशन करता है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा, आर भारत चैनल जो आपका है, भले ही उसका पत्रकार जो एंकर है चिल्ला चिल्ला कर बातें करता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि विपक्ष, चाहे भले ही कोई अच्छी बात भी हमारे सामने आ रही है, कोई खबर सही रूप में भी आ रही है, उसे विपक्ष में बैठते हुए विपक्ष की बातें करनी है, आलोचना करना है, तो वो आलोचना ही करता है। वो ये सोच कर नहीं आता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अपनी विपक्ष की बातें हमारे सामने रखेगा। सत्ता पक्ष कभी भी अपनी कमजोरी मानने को तैयार नहीं होता, और वो जो सत्य बात हमारे सामने आ रही है, उसे लगता है कि अरे ये तो मेरे विरोध में जा रही है, तो वो उसका पक्ष के रूप में बोलने का काम करता है। तो मीडिया के रूप में यदि हम देखें, आपने जैसे ये कहा कि विचारों की स्वतंत्रता हमें बहुत कम दिखाई देती है, मैं मानती हूँ, क्योंकि कोई भी केस होता है, झुग्गी झोपड़ी में यदि होता है, जैसा आपने कहा, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, मीडिया की कोई कवरेज नहीं होती, और यदि पॉश कॉलोनी में यदि उसी प्रकार का कोई केस होता है तो बढ़ चढ़ के हमारे सामने आता है। हमने ये देखा कि कोरोना काल में कितने पत्रकारों की नौकरी गई। नौकरी जाने के पीछे हम कारण ये मानते हैं कि शायद अखबार को थोड़ी कम आमदनी हो रही थी, लेकिन सर दूसरी तरफ आप देखिए, मुझे थोड़ा ये बात कहने में संकोच हो रही है कि विज्ञापन के रूप में जो व्यक्ति कोरोना से मरा है, उसकी टीए की बैठक के लिए पूरा पन्ना भरा हुआ आता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखबार के कमाने में कहीं भी कोई कमी नहीं रही। ऐसे समय में ना तो आप उनको जो नौकरी से निकाला गया उसको मैं उचित मानती हूँ, और सैलरी पे जो कम की गई है उसको भी मैं उचित नहीं मानती। तो हम ये आज देखते हैं कि मीडिया के रूप में जो अखबार चल रहे हैं,
निश्चित रूप से कमर्शियल हो गए हैं, वो सही बात हमारे सामने लाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जनता की भी एक सबसे बड़ी कमी है कि मीडिया जिस रूप में जो चीज हमारे सामने पेश करता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हम उसको मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ ये चीज ठीक है। बुद्धिजीवी तो फिर भी सोच लेता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन गांव में जो अनपढ़ व्यक्ति है उसको जब कोई बात बताई जाती है, टीवी के माध्यम से सुनता है, वो उसको मान लेता है कि हाँ ये बात सही है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मीडिया के रूप में डेमोक्रेसी डेवलपमेंट के बारे में बताया, और मैं मानती हूँ शायद आगे भी आप हमें ऐसे ही भानावत सर ऐसी वेबिनार करते रहें और हम आपको सुनते रहें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे साथ आते हैं संजीव भानावत सर। हर सब्जेक्ट में मुझे मास्टरी दिखाई देती है, और आप ये देखिए कि मधुकर सर का जब से हमने लेक्चर वेबिनार शुरू किए हैं, सर शुरू से हमारे साथ जुड़े रहे। जैन सिंह जी ने जब भी कहा कि सर हमें वेबिनार से ये सेमिनार करनी है, कोई बात नहीं जैन जी हम कर लेंगे, कभी इनकी तरफ से ना नहीं हुई। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बढ़िया तरीके से आपकी वेबिनार रहती है। और मैं देखती हूँ जैसे ही मैं आप ये देखिए व्हाट्सएप खोलती हूँ, रोज व्हाट्सएप खोला एक सेमिनार की चीज हमारे सामने आ जाती है। तो भानावत सर की मास्टरी है कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, ये उसके ऊपर अच्छे तरीके से करते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि राजस्थान कॉलेज में जब मैं थी तब तक मैं भानावत सर से शुरू के 3-4 साल नहीं मिली थी, लेकिन इनकी मैडम कौशल्या मैडम हमारे साथ थी। तो वो जो 3-4 साल थे जब तक मैं सर से नहीं मिली थी, कौशल्या मैडम की वजह से सारी बातें मुझे पता चल जाती थी। और जब सर से मैं मिली मुझे लग गया हाँ कौशल्या मैडम ने जितना कहा था बिल्कुल ही ठीक कहा था। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे वेबिनार आप करवाते रहें और हम अपना ज्ञान अर्जित करते रहें। हमारे साथ उषा बसानी मैडम थी, डिप्टी एडिटर हैं कम्युनिकेशन टुडे की, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ ही प्रीति सेंगर हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और लास्ट में जैन सिंह सर हमारे साथ हैं जो DLL के डायरेक्टर हैं, इनके साथ मैंने काफी सेमिनार भी की हैं, वेबिनार भी की हैं। और सेमिनार करने के पीछे कारण ये है कि इन्होंने हमें सारी चीजें, इनका ऑफिस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। हम ये मानते हैं कि जैन सिंह सर जब तक हैं हमें किसी बात में परेशानी नहीं होगी। इसलिए जैन सिंह सर डायरेक्टर DLL का भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और इनाक्षी मैडम जिनको मैं धन्यवाद बहन के रूप में दूंगी, दीदी के रूप में दूंगी, क्योंकि मधुकर सर में जितनी भी खासियत थी, यदि वो हेल्प करते थे, सरल स्वभाव के थे, मृदुभाषी थे, तो मैं ये मानती हूँ कि इसके पीछे इनाक्षी दीदी का ही हाथ है। जब मैं झुंझुनू अपनी पहली सर्विस ज्वाइन करने गई थी, मेरे साथ वो गई थी बड़ी बहन की तरह, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। और इनके घर जब मैं रिसर्च के काम के लिए बाद में जब भी जाती थी, बिल्कुल एक परिवार के सदस्य के रूप में जाती थी। इसलिए ये धन्यवाद की जो पात्र है वो मेरे डिपार्टमेंट की कलीग के रूप में नहीं, मधुकर सर की वाइफ के रूप में ही, बल्कि बड़ी दीदी के रूप में मैं इनको धन्यवाद देती हूँ। तो सर ये वेबिनार बहुत अच्छे तरीके से चला, और साथ ही मैं मानती हूँ कि हमारे कुछ लोग भले ही वीडियो के रूप में नहीं आए, भटनागर सर हमारे साथ थे, थानवी मैडम हमारे साथ थी, राजेश जी हमारे साथ थे, राजीव सक्सेना, हर भगवान सर, विद्या जैन मैडम, OP शर्मा, सोमनाथ दत्ता मैडम, अशोक अग्रवाल, मुकेश वर्मा, मंजू शर्मा, सुमन मौर्य, ये लोग जिनके नाम में ले सके ले लिए। इसके अलावा जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं सभी को धन्यवाद कहती हूँ। ये भावोद्गार थे एक विद्यार्थी के अपने शिक्षक के प्रति कि उनका कितना बड़ा योगदान उनके व्यक्तित्व निर्माण में हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राका जी, आपने बहुत विस्तार से सभी का धन्यवाद दिया। और प्रोफेसर KG सुरेश जी की सूचना हमारे इस आयोजन में विश्वविद्यालय के काफ़ी प्रोफेसर्स रहे हैं विभिन्न विभागों के, कुछ सेवानिवृत्त हैं, कुछ अभी भी हैं। तो ये एक मधुकर जी का जिस तरह का एक सबके साथ संवाद रहा, उसी का परिणाम है कि आज इतने समय के बाद भी सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस आयोजन में सम्मिलित हुए, और आपके इस व्याख्यान को उन्होंने बड़े मनोयोग से सुना। और एक और हमारी जो तकनीकी सहयोगी हैं, मेरी शोधार्थी पृथ्वी सेंगर, उन्होंने कुछ देर पहले मुझे संदेश भेजा और ये बताया कि अब तक 312 रजिस्ट्रेशन, मेरे ख्याल कम्युनिकेशन टुडे में अब तक का हमारा रिकॉर्ड लगभग 250-250 के आसपास था, इस बार 312 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सभी लोग इस तकनीक, हमारे पास जो तकनीक उपलब्ध है
उसमें 100 से ज़्यादा जुड़ नहीं सकते, हालांकि लगभग 55-60 मैक्सिमम अटेंडेंस रही है, लेकिन फिर भी हम अपने उस पोस्टर के माध्यम से 313 मित्रों के परिवारों में पहुंचे हैं। और फिर जो इसका पूरा वीडियो हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनको वीडियो जब सर्टिफिकेट भेजेंगे तो वीडियो भी उनको भेजेंगे, तो जिसकी जब सहजता है, अनुकूलता है, तो वो इन चीज़ों को सुन सकते हैं। मुझे बहुत फीडबैक कई बार मिला है कि साहब जब उनको भाषण देना है, आप किसी को भाषण देना है, जैसे मीडिया डेमोक्रेसी टाइप करेंगे केजी सुरेश जी का ये लगभग 1.25 घंटे का व्याख्यान और एक से बढ़िया पॉइंट उसको मिल जाएंगे, चाहे लिखना हो चाहे भाषण देना हो। तो इस तरह की विचार श्रृंखला जो है आगे से आगे बढ़ती रहती है। तो मुझे ये कहते हुए संतोष है कि इस अभियान में जिस तरह से हमारे सभी मित्रों ने एक आहुति दी है, ये आहुति हमारे इन वैचारिक सरोकारों को और आगे बढ़ाने में। और केजी सुरेश जी के लिए एक बात और कहूँगा, जब ये आईएनसी के डीजी थे तब इंडिया टुडे की वो जो हर वर्ष ये करते हैं ना रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की, उस समय भी आईएनसी को इन्होंने टॉप पोजीशन दिलाई थी। और अभी माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय को भी मैं कल ही, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी केजी सुरेश जी हमारी तरह ही बहुत सक्रिय रहते हैं, या यूँ कहूँ कि इनकी तरह से मैं सक्रिय रहता हूँ। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ जिस तरह से ये सक्रिय हैं और अपनी विभिन्न बहुआयामी गतिविधियों को ये उसके माध्यम से अपने जो मित्र लोग हैं उनके साथ शेयर करते हैं। कि खुशियाँ जब सबके साथ शेयर करते हैं तो द्विगुणित हो जाती हैं। तो उसमें अभी मुझे मालूम पड़ा कि ये जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है वो भी देश की जो टॉप 35 यूनिवर्सिटी है, 35 यूनिवर्सिटीज इसमें सम्मिलित हुई, और मध्य प्रदेश की 2 यूनिवर्सिटीज में केवल 2 यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में शामिल है। तो ये भी मुझे लगता है कि एक विजनरी वाइस चांसलर जिनका एक अनुभव, क्योंकि बेसिकली तो ये प्रोफेशन से रहे लेकिन एकेडमिक्स में जिस तरह से उन्होंने काम किया और आज अपनी बात को जिसका बहुत विस्तार से राका जी ने भी उससे उन टिप्पणियों को अपने अनुसार उसको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से वो उनके विचारों से सहमत हैं। तो प्रोफेसर केजी सुरेश जी का मार्गदर्शन हम सभी के लिए भविष्य में और अधिक पथ प्रशस्तन करेगा। मैं कम्युनिकेशन टुडे की ओर से हमारे सभी मित्रों का, जिन्होंने लगभग इस 2 घंटे के सत्र में अपनी सहभागिता से हमको प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया, इस उम्मीद में कि आने वाले आयोजनों में आपका यही उत्साहवर्धन हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत। भानावत बहुत बधाई।